اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آیت نمبر 196 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ یا جہاد یا قتال اس کے بارے میں تذکرہ آیا، اور اس میں ایک اہم جو بات وہ ہے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اور احسان کرنا۔ یہ ہم نے پچھلی آیات میں کل دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو سمجھنے کی اور ممکن حد تک اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج والعمرۃ حج اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر گھر جاؤ یا گھیر لیے جاؤ تم، فما تو جو استیسرا تو جو میسر آئے، من الہدی یا قربانی، ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلتن اپنی جگہ کو، اپنی جگہ یعنی حلال کرنے کی جگہ جب، فمن کان تو جو کوئی ہو جائے، منکم تم میں سے مریض، او بھی یا اسے اذن تکلیف ہو جائے، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ ہے، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او یا نسک قربانی سے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تو جو کوئی تمتع کرے، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج حج عمرے کے ساتھ حج کا بھی، فمستیسر تو جو بھی میسر ہو، من الحج قربانی میں سے، فمن پھر جو کوئی لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دن کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 روزے جب تم لوٹو، تلک یہ عشرۃ کاملۃ یہ پورے 10 ہوئے، ذالک یہ لمن اس لیے ہے جو لم یکن نہ ہوں اہلہ اس کے اہل خانہ، حاضر پاس، المسجد الحرام مسجد الحرام کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کافی لمبی ہے، اس کا ترجمہ ہم نے ابھی سماعت فرمایا۔ اب پچھلے جو احکامات یا ہماری جو ذمہ داریاں چلتی آ رہی ہیں، ان میں ایک اور ذمہ داری کی نشاندہی، ایک اور ہدایت
اور ایک اور کرنے کی چیز کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کر دی یہاں پر، اور وہ ہے حج کی۔ حج ہمارے جو فرض عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت ہے، اور حج جو ہے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان کے اوپر فرض ہے۔ حج ایک بدنی عبادت ہے جس میں آپ نے اپنے ایک انسان جو ہے اپنے بدن کو یا اپنے جسم کو بھی مشقت میں ڈالتا ہے۔ ایک مالی عبادت ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ ایک روحانی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے حج کی طرف چلتا ہے اور حج ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے بہت سارے سوشل بینیفٹس بھی ہیں اور بہت سارے آپ کے جو معاشی جو فائدے ہیں وہ بھی ہیں۔ تو حج جو ہے ایک ایسا رکن ہے جو بہت سارے فائدے ایک انسان کے لیے اور اوورال ایک امت کے لیے بھی چھوڑتا ہے۔ تو بہرحال حج کے بارے میں یقیناً ایک بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوگی۔ انشاءاللہ حج کے دن آ رہے ہیں، رمضان شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد حج بھی آیا پہنچا، تو ضرور اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم۔ تو اس وقت تک میں بھی حج کے بارے میں مزید کچھ آیات بھی ہم پر واضح ہو جائیں گی قرآن میں۔ تو آج جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بیان کیا یا فرمایا اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ یعنی جب تم حج اور عمرہ کی نیت کر چکو اور اس کے لیے اپنا سفر یا اپنا جو اہتمام ہے، اپنا جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر چکو اور پکا ارادہ اور پکی نیت ہو جائے اور عملی طور پر بھی ایک شروع کر دیا، تو اس کو پورا کرنا ہے۔ یعنی حج اور عمرہ کو ایک دفعہ آپ نے نیت کر کے اس کا ارادہ کر کے اس کو شروع کر دیا، اس کی طرف بڑھنا، اس کی طرف چلنا، اس کی تیاریاں اور اس کا سارا کچھ جب شروع کر دیا، تو اس کے بعد حج کو پورا کرنا، حج اور عمرہ کو پورا کرنا، تمام مناسک اور اس کے تمام جو اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ابراہیمی جو ہے اس کے مطابق پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، اور یہ یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر للہ، اللہ کے لیے، یعنی آپ کا وہ قصد، آپ کا وہ سفر، آپ کی وہ عبادت، وہ سب اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی ذاتی یا مالی فائدے کے لیے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے آپ کا وہ مطلب حج یا عمرہ نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ یا تم اگر گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو قربانی تمہیں میسر ہو وہ کر لو۔ اب یہاں پر حدیبیہ کے مقام کا سن 6 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر مختصر الفاظ میں پچھلے دنوں میں ہم نے کیا بھی، یہ اس کی طرف ایک اشارہ ہے اور اس کی طرف ایک چھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر راستے میں جب حج کا سفر یا عمرہ کا سفر کر رہے ہیں تو راستے میں تم گھیر لیے جاؤ، جس طرح سے حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمانوں کا قافلہ جو جا رہا تھا حج عمرہ کے لیے، اس کو روک دیا گیا اور ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی، اور بعد میں جو بھی ان کی نیگوسیشنز اور جو بھی ان کی آپس میں گفت و شنید ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پایا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے مدینہ اور اگلے سال آپ 3 دن کے لیے حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کافروں نے اس قافلے کو گھیر لیا۔ اس طرح کی سچویشن ویسے بھی ہو سکتی ہے، آج کل تو الحمدللہ حالات بہت اچھے ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ پرانے زمانوں میں کئی دن یا کئی مہینے کا سفر کر کے لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے تھے اور اپنی زندگی کو بھی اور اپنی جان کو بھی مشقت میں ڈالتے تھے۔
तो उस केस में रास्ते में ज़ाहिर पैदल सफ़र है या ऊँट पे या सवारियों पे सफ़र है, तो रास्ते में मतलब मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम किस्म के भी लोग हैं, शरपसंद गिरोह हैं, वो कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी करते थे। तो किसी मजबूरी के तहत, ऐसी मजबूरी जिसमें तुम एहराम की हालत में मक्का या मदीना मक्कातुल मुकरमा जो है, बैतुल्लाह जो है, वहां पर मनासक हज या मनासक उम्रा अदा करने के लिए अगर तुम ना पहुंच सको, तुम घेर लिए जाओ, तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में फमस्तैसरा मिनल हज, तो हदी कुर्बानी जो है, जो तुम अपने साथ लेकर आए हो या जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, वो वहां पर कुर्बान कर लो। वला तहलिकू रुऊसकुम, और ना तुम मुंडाओ रऊसकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक के यबलुगल हज महिल्ला, यहाँ तक के जो कुर्बानी है, जो हदी का जानवर है, जो कुर्बानी का जानवर है, वो अपनी हलालगाह को ना पहुंच जाए या वो कुर्बान न कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक बहुत वाज़ेह है कि कुर्बानी जो एक कुर्बानी हज के लिए है या उम्रे के लिए भी कुर्बानी लेकर ले जाए जा सकती है, या उम्रे के लिए भी कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। लेकिन हज के लिए जो है वो कुर्बानी जो है वो ऑब्लिगेटरी है। तो अगर जब तक तुम्हारी कुर्बानी जो है वो कुर्बान गाह में पहुंच ना जाए, और जब तक तुम्हें यकीन हो जाए कि कुर्बानी जो है उसको मतलब उसको ज़िबा कर दिया गया, उसको हलाल कर दिया गया, वो अपनी जगह पर पहुंच गई, तब तक सर मत मुंडाओ। ठीक है, ये भी एक हज के मनासिक जो है उनमें से एक अहम हुक्म है कि अपने सर को उस वक्त तक नहीं मंडाना जब तक कुर्बानी जो है वो पूरी ना हो जाए। इसके मनासिक हज जो हैं वो आएंगे तफसील के साथ, तो उसमें पढ़ेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इंशाल्लाह किस तरह से हज अदा होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पर बहुत खुलकर वाज़ेह हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो फमन काना, अब उसके बाद आयत के अगले हिस्से में फमन काना मिनकुम मरीजन, अगर तुम में से कोई मरीज हो जाए, किसी मर्ज में मुब्तला हो जाए, और भी या उसे अजन तकलीफ हो जाए, मिर रासी ही उसके सर में, फ़िदियतुन अय्याम, फिदियतुन तो उसके लिए फिदिया है। तो अब सफ़र जो है वो यहाँ तक कि आज भी हवाई जहाज में या गाड़ियों से सफ़र करना, लंबा सफ़र करना, आज भी कुछ ना कुछ मशक्क़त ज़रूर रखता है। और आज भी आज के इस आसान से सफ़र में और आसान से अल्लाह ताला की जो आसानियाँ दी हुई हैं उसमें भी इंसान जो है वो कभी कोई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो अंदाज़ा करें पिछले दौर में, पिछले अदवार में, जब वो कई कई महीनों का सफ़र करते थे और ऊँटों पर और घोड़ों पर और खच्चरों पर अपना सामान भी लादा हुआ है और पूरा दिन सफ़र भी करना है और थकावट से, तो मर्द जो है वो यकीनन कुछ लोग बीमार भी हो जाते थे। तो यहाँ पर रियायत दी गई उन लोगों के लिए जो जो बीमार हो जाएं, जो मरीज हो जाएं सफ़र के दौरान, जो मरीज हो जाएं या उनके सरों में कोई तकलीफ आ जाए। अब ये सरों में तकलीफ, सर में तकलीफ का ही जिक्र क्यों हुआ कि एक सहाबी थे, वो सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र के दौरान उनके सर में जुएं पड़ गईं। अब जो अरब लोग थे पहले, वो मतलब अब भी अक्सर देखने में आया है कि वो अपने बालों को लंबा रखते हैं, कम से कम ये जो कंधे हैं, कंधों तक तो रखते हैं। तो वो बाज़ दफ़ा बाल जो हैं वो बहुत घने होते हैं, बहुत घने होते हैं, बहुत भारी होते हैं। ठीक है, तो अब सफ़र जो किया उम्रा के लिए या हज के लिए, तो वो कई कई हफ्तों का सफ़र है। आप जब एहराम बांध लिया तो उसमें तो फिर वापस सर को मंडाना या बालों को काटना वो तो जायज़ नहीं, वो तो मना है। तो इस सूरत में वो उन सहाबी को बालों में जुएं पड़ गईं, उनके सर में जुएं पड़ गईं और जुएं इतनी ज़्यादा पड़ गईं कि वो उनके चेहरे पर और उनके कपड़ों पर भी चलती थीं। तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं कि तुम एक कुर्बानी कर सको।
यानी उनको वहां पर छूट मिली कि कुर्बानी कर लो, ये फिदिया है उस चीज का जो तुम्हारे सर में जो एक तकलीफ है, उसका एक फिदिया है, कुर्बानी कर लो और बाल जो है मुंडा लो। तो उसके बाद बाकी मनासक जो है वो भी अदा करने हैं, वो तो चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान में भी उस आसानी को वाजे कर दिया कि अगर मरीज हो जाए कोई, या उसके सर में कोई तकलीफ हो जाए जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना हो, तो उस सूरत में उसका फिदिया अदा किया जा सकता है। उसका फिदिया या उसका कफारा, उसका कफारा क्या है? मिन सयामिन, रोजों में से, मिन सियामिन, रोजों से, या आओ सदकतिन, या सदका देकर, आओ नुसकिन, या कुर्बानी के जरिए। यानी ये तीन तरीके में से कोई एक तरीका जो भी पसंद आए, जो भी मुमकिन हो, जो भी आप कर सकते हो, इन तीनों में से एक फिदिया, एक कफारा जो है वो अदा करके आप, वो मरीज जो है वहां पर अपना एहराम खोल सकता है, या अपना जो जो मुनासिब जो रह रहा है उसका, उसके उससे वो मतलब उसको टैकल कर सकता है। तो क्या है तीन? रोजा रखकर, रोजे रखकर, ठीक है, या सदका देकर, या कुर्बानी से। फाइजा, इसकी भी डिटेल आएगी, रोजे और सदके और कुर्बानी कितनी क्या है। फाइजा अमीन तुम, और बस जब तुम अमन में आ जाओ, जब तुम अमन में आ जाओ, मतलब ऊपर जो दो तीन बातें जिक्र हुई, एक तो यह है कि तुमको घेर लिया जाए, या किसी बीमारी या सर में तकलीफ की वजह से तुम्हारे ऊपर कोई उधर आ जाए, तो उस सूरत में, उस सूरत से जब तुम निकल आओ, जब तुम अमन पा जाओ, यानी वो सूरतें जब खत्म हो जाए, उसके बाद क्या है? फमन, तो जो कोई तमत्ता बिल उम्रती इलल हज, जो कोई फायदा उठाए उम्र का हज के साथ। तमत्ता, तमत्ता जो है ये है ये हज की एक किस्म है जिसमें उम्रा और हज दोनों एक ही सफर में एक साथ ही अदा किए जाते हैं। ठीक है, तो हज की तीन किस्में हैं आमतौर पे, हज तमत्तो, हज क़िरान और हज इफराद। हज तमत्तो जो है जिसका ये जिक्र आया, इसमें क्या है कि उम्रा जो है, उम्रा और हज जो है इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये तो पता ही है। उम्रा जो है उसको हज असगर कहते हैं, और जो हज है उसको हज अकबर भी कहते हैं। तो उम्रा जो है उसमें मनासक जो है वो बहुत ही लिमिटेड से हैं, सिर्फ सही करनी है और तवाफ करना है और नफल अदा करने हैं, इस तरह इतना सा महदूद सा है। लेकिन हज जो है उसके मनासिक जो है वो काफी जी, और दो तीन दिन जो है उसमें, तीन तीन से 5 दिन उसको अदा करने में भी लगते हैं। ठीक है, तो हज तमत्तो जो है उसमें पहले उम्रा किया जाता है, उम्रा करने के बाद एहराम को खोल दिया जाता है, और उसके बाद जब हज के एहराम जो अय्याम शुरू हो जाए 8 जिलहज्जा को, तो उसके बाद दोबारा से एहराम की हालत में आकर हज के बाकी मनासिक जो है वो अदा किए जाते हैं। तो ये हज तमत्तो है। हज क़िरान जो है उसमें एक ही एहराम में उम्रा किया, सबसे पहले आके एहराम बांध के उम्रा किया, उम्रा करके एहराम को खोलना नहीं है जब तक कि हज के बाकी अरकान भी पूरे ना हो जाए। ठीक है, और हज इफराद जो है वो सिर्फ हज है, उसमें उम्रा नहीं है, वो सिर्फ हज के अरकान जो है सीधा वो, मतलब एहराम की हालत में सीधा हज के अरकान सिर्फ अदा करके तो ख़त्म कर देना बस। तो ये तीन किस्म का हज है, इसकी भी तफसील फर्दर जो है जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर तमत्ता जो है हज, उम्रा और हज को इकट्ठा करके जो अदा किया जाना है, जो उससे फ़ायदा उठाए। ये यानी कि फ़ायदा इसमें मेन क्या है कि पहले उम्रा कर लिया जाके, उम्रा करके एहराम जो है वो खोल दिए, एहराम की जो शर्तें हैं उनसे आज़ाद हो गए, और जब हज के दिन शुरू हो गए तो वापस एहराम बांध कर एहराम की हालत में आ गए। तो ये उसमें आसानी है, और इसी को प्रेफर किया गया हदीसों में भी, और इसी की तरगीब भी दी गई है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज तमत्तो नहीं कर सके, वो हज क़िरान किया था उन्होंने। तो बहरहाल ये जो आसानी है, जो फ़ायदा उठाए उम्रे का और हज का इकट्ठा तमत्तो करके, उसको इकट्ठा करके, फमस तईसरत मिनल हद जी, जो भी मुयसर हो कुर्बानी वो कुर्बानी कर लो, जो भी मुयसर हो कुर्बानी वो कुर्बानी कर लो। आपको पता है कि जो हज के जो अरकान है उसमें कुर्बानी भी एक बहुत अहम रुकन है। फमन, फिर जो कोई लम ना पाए, लम यजिद फसियाम, ना पाए, क्या ना पाए? कुर्बानी ना पाए। अगर किसी के पास इस्तिताअत ना हो या मिले ना, इस्तिताअत ना हो,
قربانی کرنے کی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس صورت میں ہے روزے رکھنا۔ روزے رکھنا کتنے روزے رکھنا؟ ثلاثۃ ایام، 3 روزے، فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے، ثلاثۃ 3 ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے حج کے دنوں میں۔ حج کے دن کون سے ہیں جیسے اس میں روزہ رکھے سکتے ہیں؟ 8 اور 9 ذی الحجہ، 10 کو عید آ گئی، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن جو ہے یہ حج کے ایام ہے۔ ان 5 میں سے 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ وہ سب آتن، اور 7 اذا رجعتم، جب گھر کو لوٹ جائیں، جب اپنے گھروں کو واپس پہنچ جائیں تو 7 روزے تب رکھنے، 3 روزے ایام حج کے دوران، ایام حج کے جو 5 دن ہیں اس دوران میں، اور 7 روزے جب حج سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے، 10 روزے پورے ہو گئے، یعنی 10 روزے رکھنے ہیں، 3 ایام حج میں اور 7 جب گھر کو واپس لوٹیں گے۔ ذالک، یہ لمن لم یکن، یہ اس لیے ہے جو نہ ہوں اہلہ، ان کے اہل خانہ، حاضری، حاضر یا پاس رہنے والے، المسجد الحرامی، مسجد الحرام کی، یہ چھوٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہتے ہیں، یا جو میقات کی جو حدود ہے اس کے اندر اندر رہتے ہیں، ان کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے، ان کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، اللہ سے، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان بے شک اللہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر پھر آ گیا، جیسے کل تھوڑا سا ذکر ہوا تھا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، پھر واپس اللہ سے ڈرنے کا ایک دفعہ پھر ذکر آ گیا، کیونکہ اللہ سے جو ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یقیناً ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کی جہاں تک ممکن ہو صحیح معنوں میں، صحیح حسن نیت کے ساتھ ان کو انجام پائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے جتنے بھی نیک اعمال میں ہے ان میں شرط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ایک سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور غفور اور حلیم ہے، وہاں پر وہ سخت سزا اور سخت عذاب بھی دینے والا ہے، اور سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے وہ۔ الحج، حج، اشہر معلومات، مہینے کے معلوم دن، وہ دن جن میں ہمیں پتہ ہے کہ حج ہو سکتا ہے، حج کے دن جو ہیں یا حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں، سب کو معلوم ہے۔ فمن، تو جو کوئی فرض کر لے، فیہن، ان میں، ان دنوں میں، الحج، حج کو، جو کوئی ان دنوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، پکا ارادہ اور قصد کر لے، فلا، تو نہ، رفث، جنسی گفتگو کرے، جنسی گفتگو یعنی میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے اس سے منع ہے، تو جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس سے منع رہے، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرے، نہ گناہ کرنا، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور نہ تم، وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، بھلائی میں سے کوئی نیک عمل، یعلمہ اللہ، جان لے گا اللہ تعالیٰ اسے، وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لو، اور تم رستے کا، سفر کا سامان اپنے ساتھ لے لیا کرو، فإن، پس بے شک، خیر، بہترین، بہتر، الزاد التقوی، زاد راہ جو ہے، بہتر جو رستے کا سامان ہے وہ تقوی ہے، واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو۔ اب یہاں پر حج کے بارے میں کچھ فردر احکامات یا فردر اس کی کرنے اور نہ کرنے کے کام جو ہیں وہ یہاں پر ذکر ہوئے، کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، یعنی حج کی تیاری کے لیے مطلب بہت پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حج کے مہینے آ رہے ہیں، اور ایکچولی یہاں پر تفصیل اگر جائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی، کہ اس آیت سے پہلے یا پہلے دور میں، مکہ کے اسلام کے پہلے شروع کے دور میں یا اس سے پہلے، وہ مہینوں میں بھی کچھ گڑبڑ کیا دیتے، کفار جو ہیں
कुफार मक्का या मुशरिकीन मक्का जो उस वक्त वो महीनों की काउंटिंग में भी कुछ गड़बड़ करते थे, ठीक है। इसकी तफसील पढ़ेंगे जब पढ़ूंगा तो मैं नेक्स्ट जब भी हज का आएगा टॉपिक तो मैं आपसे जिक्र कर दूंगा उसका। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि हज के महीने मालूम है, यानी हज के महीनों में कोई हेर फेर नहीं है। अब हज के महीने मालूम है, तो जो कोई कसद कर ले, जो कोई अपने ऊपर फर्ज कर ले, यानी जो कोई इरादा करके अपने ऊपर अपने सफर जो है उसके ऊपर अपना अमल जो है वो शुरू कर दे इन दिनों में, हज के दिनों में, तो उसके लिए ये 3 चीजें जो है उनसे मना कर दिया गया। कौन सी 3 चीजें? और मियाँ बीवी का आपस में जो तल्लक है उसको हालत एहराम में, हज के सफर के दौरान हालत एहराम में मियाँ बीवी के तल्लक जो है उसको मना कर दिया गया, और गुनाह के जितने काम है उनको मना कर दिया गया, और झगड़ा फसाद करने वाले, ये 3 काम जो है। इसमें पहला जो है ये काम, ये अमल तो हलाल है, लेकिन उसकी ममानत आ गई, उसको मना कर दिया गया हज के दौरान, या हज के जो मनासिक हैं या हज के जो सफर है एहराम की हालत में, उससे मना कर दिया गया। उसके अलावा बाकी गुनाह के और झगड़ा करने के काम तो वैसे ही मना है, लेकिन इन दिनों में उसकी खास एहतमाम रखना है, खास तौर पर उस पर नजर रखनी है, तो कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे कोई गुनाह का खदशा है या जिससे कोई झगड़ा जो है वो उसको हवा मिलती हो, ठीक है। वमा तफआलू, और जो भी तुम करोगे, मिन खैरिन, भलाई में से, जो नेक काम तुम करोगे, यालमुल्लाह, अल्लाह ताला उसे जान लेगा। अब अल्लाह ताला जो है वो दिलों की नीयतों को जानता है, जो दिलों में है उस सब को जानता है। जो भी नेकी का काम है, अगर तो दिखावे के लिए है या उसकी नीयत है वो कितनी अच्छी है, वो सब अल्लाह ताला के इल्म में है। अल्लाह ताला से कुछ भी पोशीदा नहीं। तो अगर जो भी तुम नेक अमल कर रहे हो वो अल्लाह ताला उसे जान लेगा, या अल्लाह ताला उसको यकीनन जानता है। वह तज़व्वदू, और ज़ादे राह ले लो, और अपने रास्ता का सफ़र का सामान जो है वो अपने साथ रख लो या करो। अब जब भी सफ़र पे निकले तो सफ़र के लिए जो ज़रूरी साजो सामान है, सफ़र के लिए सवारी वगैरह जो है उसका इंतज़ाम करना, या अपने कपड़े वगैरह रखना, खाने पीने का अहतमाम, अपने पास इतनी करेंसी या इतने पैसे रखना जिससे आपका पूरा सफ़र जो है वो आसानी से कट जाए, बल्कि थोड़ा सा इजाफी रखना अपने पास, ताकि रास्ते में कोई मजबूरी की शक्ल में टैकल किया जा सके। तो ये सारे जो भी सफ़र की तैयारियां हैं, आपके घर से निकलने से लेकर आपके घर वापस पहुंचने तक, वो सारी की सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर लिया करो। वो सब के साथ अपने साथ पूरे एहतमाम के साथ सफ़र करना है। फ़ाइन फ़ाइन पस बेशक, खैर बेहतरीन, अज़ाद तकवा, ज़ाद राह जो है, बेहतरीन रास्ते का सामान जो है वो तकवा है। अब दुनियावी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर तो जो भी रास्ते का सामान आपने ले लिया, आपने पैसे वगैरह या अपने कपड़े वगैरह या खाने का सामान या बाकी सारी तैयारियां पूरी हो गई। उसके अलावा अपने साथ जो रास्ते के लिए जो सामान सफ़र बांधना है, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका तकवा, अल्लाह ताला से डर, आपकी नीयत, आपका हुस्न अमल, वो सब। क्योंकि अल्लाह ताला जो है उसको आपका ज़ाहिरी अमल जो है, हमने हदीस में पढ़ा कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिरी अमल को नहीं देखता, बल्कि वो दिल को देखता है और नीयत को देखता है। वो तकवा को देखता है कि इंसान जो है वो किस हद तक अल्लाह ताला से डरता है और अल्लाह ताला के लिए खालिस नीयत रखता है। वत्तकूनी, और मुझसे ही डरो, वत्तकूनी, और मुझसे ही डरो, या उलिल अलबाब, ए लोगों जो अकल रखते हुए, ए अकल रखने वालों, और मुझसे ही डरो ए अकल रखने वालों। आज यहाँ तक ही बस करते हैं। अगली आज जो है वो उसमें थोड़ी सी और भी तफसील है, तो आज शायद मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो आज यहीं पे इंशाल्लाह मजलिस का इस आज की जो
आयत है उसका इस्तेमाल करते हैं। कल इंशाल्लाह अगली आयत से देखेंगे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो इसमें किसी को कुछ ऐड करना है या मेरे कहने में कुछ गड़बड़ हो गई है कहीं पर, अल्लाह ताला माफ़ करे तो ज़रूर उसको हाईलाइट किया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वही अक्षय जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फीक इंशाल्लाह। जी हमारे पास 7 मिनट है तकरीबन, तो अगर किसी ने कुछ ऐड करना है, नहीं तो फिर इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आपने बहुत अच्छे से कर दिया, बस मैं ये थोड़ी सी इसमें एक चीज़ है, ये 196 में हमने किया है ना आयत, तो उसमें है वअतिमु, मतलब तुम लोग पूरा करो। मतलब ये नहीं इसमें कहा कि तुम लोग हज करो, बल्कि ये कहा कि इन्हें पूरा करो। मतलब इसलिए कि पूरा मतलब करो एक दफ़ा अगर आपने जी हज या उम्रा की नियत से अगर एहराम बांध लिया है, तो अगर मतलब खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी हो जाती है, तो ये है कि आप कुर्बानी करके उसको खोल सकते हैं, लेकिन उसकी कज़ा आपको देनी पड़ेगी। मतलब जो रह गई चीज़ें जी आपने वैसे तो लतीफ़े का बताया अभी ना, तो इसमें बस यही था कि ये पूरा करो, मतलब जो रह गए हैं तो दोबारा से हज करना उसके लिए लाज़मी है। और इसके अलावा ये हाँ जी बिल्कुल। एक और चीज़ भी इसमें वो थी कि हज और उम्रा मतलब इसी आयत में फर्स्ट टाइम कहा ना कि इकट्ठे कर सकते हैं। इससे पहले मतलब इस्लाम से पहले नहीं था अलाउड के, अच्छा नहीं से समझा जाता कि एक ही दफ़ा में हज भी किया जाए और उम्रा भी। तो वो जो लोग मीकात के अंदर रहते हैं उनके लिए तो बेहतर था, लेकिन बाकियों को मुश्किल हो रही थी, तो फिर इसमें मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल आया था कि आप हज और उम्रा इकट्ठे कर सकते हैं। यानी मतलब उम्रा किया और आपने अपना एहराम उतार दिया और उसके बाद मतलब हज के लिए दोबारा बांध लिया और कुर्बानी दे दी, अगर जहाँ तक मुझे मतलब लग रहा है शायद इसमें। जी जी जज़ाकल्लाह खैरन। आपने जो भी कहा बिल्कुल यही कहा, बिल्कुल सही कहा अल्लाह ताला के फजल करम से। और इसका यकीनन यही मतलब है और इसका यही फ़ायदा भी है। और इसीलिए इसी आयत में आगे बता दिया गया कि ये जो आसानी है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जो मिकात की हदूद में रहते हैं। ये जो आसानी है, ये तमत्तो जो करना है, यानी ये जो तमत्तो का जो है, हज और उम्रे को इकट्ठा कर लेना, क्योंकि वो तो वहीं पे रहते हैं, उनके लिए उम्रा जो है वो रोज़ की बात है, रोज़ का मामूल होता है। तो जो बाहर से लंबा सफ़र करके आते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने या 2-2 हफ्ते का, ये उनके लिए है, उनके लिए ये सहूलत है। और इस सहूलत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे तो वो हज तमत्तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपने सहाबा को हुक्म दिया था। पहले कहा था, बाद में उन्होंने कुछ सहाबा जो हैं वो थोड़ा-सा शश-ओ-पंज में थे, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए थे उनसे कि मैंने अगर कहा है कि हज तमत्तो करो, तो हज तमत्तो करना है। तो उसको बहुत अच्छी तरह से एप्रिशिएट किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये बहुत बड़ी आसानी हमारे लिए कर दी अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नहीं तो 1 महीना 2 महीने या 2-3 हफ्ते पहले जहाँ जाकर उम्रा अदा करके हराम की हालत में ही रहना, ये इतना आसान काम नहीं है। देखने में तो हमें कुछ नहीं लगता जी, लेकिन जो मुसाफिर होते हैं ये उनको ही पता चलता है कि ये कितना मुश्किल हो जाता है। तो जज़ाकल्लाह खैरन, आपने अच्छे पॉइंट जो हैं वो वाज़ेह कर दिए। जी बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर शफाक साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसके लिए भी दुआ की, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाए इंशाल्लाह। क्योंकि कल हम लोगों ने दुआ के लिए कहा था, तो अल्लाह इज़्ज़त खैर दे सबको इंशाल्लाह, जिसने जिसके हक में दुआ की है। तो जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि जो किसी के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके पीछे कहते हैं ऐसे ही तुझे भी इंशाल्लाह। तो उनको भी फायदा हुआ इंशाल्लाह, जिसने जिसके लिए दुआ की इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल अगली आयत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसके साथ जुड़े रहें, अपने अमल को मुसलसल करें और अल्लाह ताला हमें हमेशा नेकी की तौफीक दे और हमें जो गुनाह के काम हैं अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ